Okay, good morning everybody. Chalo, come to retirement and death, page number 23. Take question number 2, page number 23. Let us read the question. Question number 2, page number 23. On 31st March 2019, balance sheet of Messrs. Ram, Hari and Mohan sharing profits and losses in the ratio of 2:3:2 stood as follows. So एक छोटा सा बैलेंस शीट दिया हुआ है, very standard balance sheet. They have given you capitals of partners Ram, Hari and Mohan, sundry creditors. Then asset side they have given you land and buildings, machinery, closing stock, sundry debtors and cash and bank balance. On 31st March, Hari decided to retire from the firm and remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. Land and buildings to be appreciated by 30%. Machinery to be depreciated by 20%. Closing stock to be valued at 4,50,000. Provision for bad debts was to be made at 5%. Old balances of sundry creditors rupees 50,000 to be returned back. Joint life policy of the partners was to be surrendered and cash obtained rupees 3,50,000. Goodwill of the entire firm to be valued at rupees 6,30,000 and Hari's share of goodwill will be adjusted in the accounts of Ram and Mohan, who share the future profits and losses in the ratio of 3:2. No goodwill account being raised. Total capital of the firm to be same as before retirement. Individual capital to be in their profit sharing ratio. Amount due to Hari is to be settled on the following basis. 50% to be paid on retirement and balance 50% will be paid within 1 year. So very standard requirement part. Pehle you have to prepare a revaluation account, then partners capital account, cash account and balance sheet on 1/4/2019, that is after Hari's retirement. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाते हैं. राइट डाउन revaluation account, revaluation account 10 लाइंस छोड़ के लिखो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वी विल रिक्वायर टोटल 15 लाइंस 15. उसके नीचे अगर जगह बचता है तो 7 लाइंस का कैश एंड बैंक अकाउंट चाहिए. अगर नहीं बचता है तो गो टू नेक्स्ट पेज. वी रिक्वायर 15 लाइंस का पार्टनर्स कैपिटल. 15 लाइन से कम नहीं चलेगा. एंड कैश एंड बैंक अकाउंट वी रिक्वायर मैक्सिमम 7 लाइंस. 1 लाइन एक्स्ट्रा बट उससे कम नहीं. 7 लाइन कैश एंड बैंक अकाउंट. बैलेंस शीट का साइज विल बी मोर और लेस सेम व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मे बी 1 लाइन एक्स्ट्रा. सो मैक्सिमम 9 लाइंस का बैलेंस शीट. उसके नीचे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का टेबल. प्रिपेयर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज टेबल. अप टू रिवैल्यूएशन देयर इज नो चेंज. जो हम लोग एडमिशन में करते थे वही हमको रिटायरमेंट में करना है. जस्ट बी वेरी केयरफुल कि विच पार्टनर इज रिटायरिंग, क्योंकि एडमिशन में कैसा होता है कि हमेशा थर्ड पार्टनर में रेशियोज के कैलकुलेशन में वी शुड बी देयर. बट यहाँ पे हरी दैट इज द सेकेंड पार्टनर इन ऑर्डर who is retiring. So be very careful while preparing ratios table. Revaluation तक you can do it on your own. हम लोग ने एडमिशन में रिवैल्यूएशन तक काफी डिटेल में डिस्कस किया है. सो स्टार्ट डूइंग. स्ट्रिक्टली गोइंग बाय स्टेप्स दैट वी फॉलो. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. पहले रेशियोज कैलकुलेशन में राम का सैक्रिफाइस कितना है या गेन व्हाटएवर
That is what? Ram का gain is 11/35. Okay. Hari का sacrifice is, and Mohan का gain is. Okay, that is step number 1. Continuing step number 1, capital accounts में opening balance आएगा. राम, हरी and मोहन के capital account के credit side में आएगा. Buy balance brought down 10 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively. That is end of step number 1. Step number 2 is distribute reserves and accumulated losses जो balance sheet में नहीं है. Next we go for revaluation. Land and building to be appreciated by 30%. So revaluation account credit side, buy land and building 3 lakh. Next आएगा machinery to be depreciated by 20%. Of course, land and building balance sheet asset side में जाएगा 13 lakhs. Then machinery to be depreciated by 20%. Revaluation account debit side to machinery account 3 lakh 40,000, and will go to balance sheet asset side machinery 13 lakhs 60,000. Next one is closing stock to be valued at 4 lakh 50,000. So again revaluation account debit side to stock or to closing stock 50,000, and then balance sheet asset side closing stock 4,50,000. Provision for bad debts is to be made at 5%. Again revaluation account debit side to provision for doubtful debts, bad debts is 30,000, and balance sheet asset side sundry debtors inner column 6 lakh minus provision for doubtful debts 30,000, outer column 5 lakh 70,000. Old credit balances of sundry creditors to be written back 50,000. Revaluation account credit side by sundry creditors 50,000. This is profit for us. Old balances of sundry creditors to be written back. So revaluation account credit side. ये अगर किसी ने मिस्टेक किया है 10 मार्क के क्वेश्चन में 0 मिलेगा तुमको. See, I don't understand. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब डिस्कस करके क्यों कर रहे हो. यू डोंट गेट एनी लग्जरी ऑफ डिस्कसिंग इन एग्जाम. आप अपना खुद का करो ना, अगर आपको पहला इंस्टिंक्ट फॉलो करता है. मतलब आपने खुद से किया और बाद में आगे वाले के पेपर में देखा इसने तो क्रेडिट में नहीं डेबिट में लिखा है. एक्सक्यूज मी, कैन वी प्लीज ग्रो अप? वी आर नॉट इन 12th स्टैंडर्ड. अभी 2 महीने में तुम इंटर में आ जाओगे. हम लोग कभी ग्रो होंगे कि उधर ही रहने वाले हैं हम लोग. सिर्फ बॉडी से ग्रो हो रहा है, दिमाग से भी अपने आप को ग्रो करो. फॉलो, यू आर प्रोफेशनल. मेरे ओपिनियन में दिस व्हाट शुड बी डन. यू फॉलो माय ओपिनियन और चेंज योर ओपिनियन. व्हाई शुड यू आर चेंजिंग योर ओपिनियन बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस ओपिनियन? और उसका कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा है कि आपने सीधा साइड ही चेंज कर दिया. अरे यार कम ऑन. मतलब मैं इतना बोला उसका कोई मतलब ही नहीं था एक्चुअली. फिर भी आप जस्ट 1 मिनट. मैंने बोला आपको क्या लगता है. मैंने ऐसा पूछा ये सबको क्या लगता है वो आप फॉलो करो. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज. आपको ग्रो होना ही नहीं है. Sundry creditors, revaluation account credit side by sundry creditors 50,000. This is profit. And balance sheet asset side, sundry creditors, balance sheet asset side sundry creditors 4,50,000. Close revaluation account. Tell me what is the profit or loss. Obviously अभी तुम लोग ने जो कांड किया है वो सब चेंज करने के बाद बताओ प्रॉफिट या लॉस कितना है. 70,000 is correct. 70,000 will be distributed between the old partners in old ratio 2:3:2. 2:3:2. So this is simple. 20,000, 30,000, 20,000. Partners capital account. ये प्रॉफिट था, ये लॉस है. लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू revaluation account same amounts 20,000, 30,000, 20,000. Okay, now since this is retirement of the partner का question, we will go for next step, and I think next step should be actually joint life policy. चलो now let us revise joint life policy. अगर आपको याद है तो हम लोग ने joint life policy में 3 accounting treatments पढ़ा है. Joint life policy, there are 3 accounting treatments that we have studied. अगर आप अपना वॉल्यूम 3 लेके आए हो तो प्लीज ओपन वॉल्यूम 3 which you should be carrying. Joint life policy, come to volume 3. There are 3 accounting treatments that we have studied for joint life policy.
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिवाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1 which was in your textbook, you can take out your textbook volume number 3, कहीं पे तो रहेगा, प्लीज somebody give page number because मेरे पास volume 3 नहीं है। I have our new study material, तो उसके अंदर कहीं पे तो ऐसा joint life policy heading दिया रहेगा, चेक करो। Okay, whatever is your page number, please take out that page number and अब मुझे बताओ सबसे पहला method is called as which method? सबसे पहला method is called as premium method। सेकेंड मेथड इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो हमने किया था इज सरेंडर वैल्यू मेथड। एंड लास्ट मेथड दैट इज मेथड नंबर 3 को हम लोग बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। राइट नाउ माय फोकस इज ऑन मेथड नंबर 1 दैट इज प्रीमियम मेथड एंड मेथड नंबर 2 दैट इज सरेंडर वैल्यू मेथड। चलो प्रीमियम मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, वी आर डिस्कसिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। तो कॉन्सेप्चुअली ये दो मेथड कहां पे डिफर होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अंडर प्रीमियम मेथड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड under surrender value method joint life policy premium that is paid is treated as an asset। सो दैट इज वाई दोनों के जर्नल एंट्री में ही फर्क है। अगर आप प्रीमियम मेथड में आओगे तो सबसे पहले यू कैन सी प्रीमियम मेथड में ऑन दैट पेज, व्हाट इज द पेज नंबर आपका वॉल्यूम नंबर 3 का, कि कोई लाया ही नहीं है वॉल्यूम 3, 254। ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में प्रीमियम मेथड में पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द फर्म, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द फर्म? It is joint life policy premium account debit, insurance premium और premium account debit to bank account। यहां पे premium is treated as what of the firm? Expense of the firm। मतलब आपने प्रीमियम पे किया, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, जैसे आप नॉर्मल बाकी कोई एक्सपेंस पे करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला है या प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस निकाला है या फर्नीचर का इंश्योरेंस निकाला है या मोटर कार का इंश्योरेंस निकाला है, ये सब इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप पे करते हो फर्म में तो आप एंट्री पास करते हो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वैसे ही आप लोग ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। Okay, I forgot first of all what is joint life policy. It is a insurance policy which is taken out on the life of all the partners। All is very important, that is why यहाँ पे word use किया है joint। It is a joint life policy, मतलब there is only one insurance policy which is taken out on the life of all the partners jointly। So उसका जो प्रीमियम पे कर रहा है उसमें who is paying the premium? The premium is paid by the firm। एंड आप फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करोगे तो डिपेंड्स ऑन द मेथड दैट यू फॉलो। मेथड नंबर 1 इज यू ट्रीट दिस प्रीमियम एज एन एक्सपेंस। अगर आप ये प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करते हो तो दो एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री जो आपको पास करना पड़ेगा is for treating such premium as an expense at the end of the accounting year। मतलब end of the year में आप इसको ट्रांसफर कर दोगे to profit and loss account। that is what is the entries that are passed every year when the premium is paid। so जितना भी साल आप प्रीमियम पे करोगे ये दो एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। दिस इज अंडर मेथड नंबर 1। What will happen at the time of retirement or death वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आई हैव डिस्कस्ड ओनली एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2, दैट इज what is the entry that will be passed on the payment of premium and what is the entry that will be passed for treating such premium as an expense। now हम method number 2 में जाते हैं। you can see method number 2 will be there in your textbook also। method number 2 में जो प्रीमियम फर्म पे करता है
वो लोग इसको एसेट ट्रीट करते हैं, बिकॉज मेथड नंबर 2 इज आर्ग्यूइंग दैट whatever प्रीमियम यू हैव पेड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो पैसा मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है और कब मिलने वाला है ये हमको नहीं पता है, बिकॉज जब हम पॉलिसी निकालते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तब हमको नहीं पता है कि पार्टनर कब रिटायर होगा, तब हमको नहीं पता है कि पार्टनर का डेथ कब होगा. सो व्हाट वी डू इज वी record the premium और we treat the premium as an asset. So उसके लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं and the name of the account is joint life policy account. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जर्नल एंट्री में हम लोग ने डेबिट किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यू कैन कंपेयर बोथ द मेथड्स. इफ यू कंपेयर बोथ द मेथड्स तो आपको अच्छे से समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं. इफ यू कंपेयर बोथ द मेथड्स यू कैन सी in the first method you are passing the entry joint life policy premium account debit to bank account, और second method में आप क्या एंट्री पास कर रहे हो, joint life policy account debit to bank account. देन फर्स्ट मेथड में आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जो पे कर रहे हो वो अकाउंट को आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो. मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट गेट्स कैंसल्ड, गेट्स क्लोज्ड, क्योंकि प्रीमियम को आपने पहले डेबिट किया बाद में आपने क्रेडिट किया. लेकिन सेकंड मेथड में ऐसा नहीं है. सेकंड मेथड में क्या होता है, जो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो उसके लिए आपने एक अकाउंट डेबिट किया है एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. सो मेथड नंबर 2 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम जब भी आप पे करते हो तो यू डेबिट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे करने के टाइम पे आपने एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. से फॉर एग्जांपल फर्म इज पेइंग अ प्रीमियम ऑफ से फॉर एग्जांपल 30,000, जस्ट एग्जांपल. अब एंड ऑफ द ईयर में आप क्या करोगे, एंड ऑफ द ईयर में आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट पे दिखाओगे, बट एसेट पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शोन एट इट्स सरेंडर वैल्यू. एसेट साइड पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शोन एट इट्स सरेंडर वैल्यू. तो ईयर नंबर 1 में, जस्ट आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सपोज ईयर नंबर 1 में इसका सरेंडर वैल्यू इज ओनली 5,000. सो अगर सरेंडर वैल्यू इज ओनली 5,000, सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये अकाउंट में बाय बैलेंस कैरीड डाउन विल बी एट विच वैल्यू. सो सरेंडर वैल्यू, I want to take this joint life policy at asset side at its surrender value, तो by balance carried down 5,000 आएगा. Therefore जो 25,000 है वो 25,000 हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस 25,000 इज कॉल्ड एज प्रीमियम इन एक्सेस of surrender value, or this is called as amount in excess of surrender value. इसको आप end of the year में as a loss treat करके, it's as good as तुम्हारा 30,000 का asset था, उसका value तुम्हारा 5,000 हो गया है, तो 25,000 का लॉस है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये दो एंट्रीज पास होगा इन दिस मेथड एवरी ईयर व्हेन द फर्म विल पे द प्रीमियम. एंड सेकेंडली एवरी ईयर के एंड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर एट इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन द असेट साइड. एंड व्हाई ऑन द असेट साइड, बिकॉज आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस, तो वो एसेट साइड पे दिखेगा. These are the two methods that you have studied for joint life policy. First one is premium method and second one is surrender value method. So let us summarize what is surrender value method. या व्हाट इज प्रीमियम मेथड. प्रीमियम मेथड में हम लोग ने प्रीमियम जो पे किया उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. एंड सेकेंड मेथड में दैट इज सरेंडर वैल्यू मेथड में प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन असेट. प्रीमियम को अगर आप एसेट ट्रीट करते हो उसका मतलब
आप एसेट साइड पे जरूर बताओगे, बट एसेट साइड पे प्रीमियम विल अपीयर एट इट्स सरेंडर वैल्यू. नाउ वेदर इट इज मेथड 1 or whether it is method 2, what will happen at the time of retirement and what will happen at the time of death, ये हम साथ में डिस्कस करेंगे. मतलब सिंपल लैंग्वेज में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा. तो रिटायरमेंट होगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी, रिटायरमेंट के टाइम पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी सरेंडर्ड एट इट्स, जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उस पे हम सरेंडर कर देंगे. और अगर डेथ होता है तो डेथ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा. मतलब सिंपल लैंग्वेज में रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग को कौन सा वैल्यू मिलेगा, सरेंडर वैल्यू, एंड मैच्योरिटी पे हमको क्या मिलेगा, what will you get at the time of maturity of the policy is full policy amount. This is a very big difference between retirement of partner and death of the partner. कि रिटायरमेंट के टाइम पे हमको सरेंडर वैल्यू मिलेगा क्योंकि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करेंगे. अच्छा, रिटायरमेंट पे टाइम पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो सरेंडर करने का कि नहीं करने का. मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे सरेंडरिंग द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज ऑप्शनल के कंपल्सरी. कंपल्सरी, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम कंपल्सरली सरेंडर करेंगे और जो भी सरेंडर वैल्यू हमको मिलेगा उसका एंट्री पास होगा. अच्छा, अभी व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू, वेदर आप मेथड 1 फॉलो करो या मेथड 2 फॉलो करो, वॉटेवर आपका सरेंडर वैल्यू रहेगा कि आपका मैच्योरिटी रहेगा, दोनों केस में एंट्री सेम है. What is the journal entry you will pass if joint life policy will be either surrendered or it will be maturing? And method number 1 रहेगा कि method number 2 रहेगा, doesn't matter, दोनों में entry same है. What is the entry for receiving amount from the insurance company? I have spoken receiving amount from the insurance company. अब वो surrender value भी हो सकता है, full policy amount भी हो सकता है, doesn't matter. अच्छा, वो मेथड 1 भी हो सकता है, मेथड 2 भी हो सकता है. बोथ मेथड्स में व्हाट इज द जर्नल एंट्री यू विल पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. नो, इट इज नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. आप एक ही मेथड कॉमन फॉलो करो, अलग अलग मेथड फॉलो करोगे तो अपने दिमाग में बोलेगा कब ये करने का कब वो करने का, कि तो ये कुछ गलत नहीं है. दोनों मेथड में आप यही एंट्री फॉलो करो. व्हाट इज द एंट्री वी विल फॉलो, फॉर रिसीविंग अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. कौन से मेथड में, कोई भी मेथड हो, मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, एंट्री यही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. हाँ, मेथड नंबर 1 में आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग, बट आई फील अलग अलग याद रखने से अच्छा आप एक ही सिस्टम फॉलो करो सो दैट वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन इन अवर माइंड. ऑलरेडी देयर आर 3 मेथड्स, ऑलरेडी इतना सब एंट्री है, ये वो इतना चैप्टर्स है, क्यों अपना लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो. उससे अच्छा सिंपल, पैसा मिला मैं एक ही एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. हाँ, अब मेथड नंबर 1 में और मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 1 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके अकाउंट ही नहीं था. तो अगर आप मेथड नंबर 1 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को विजुअलाइज करोगे, मेथड नंबर 1 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये एंट्री जो अभी अभी हमने पास किया है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में कौन से साइड पे पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड पे. जो भी हमको मैच्योरिटी वैल्यू या सरेंडर वैल्यू मिला, सरेंडर वैल्यू या फुल पॉलिसी अमाउंट जो भी हमको मिला विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड. एंड ये पूरे का पूरा अमाउंट इज इनकम ऑफ द फर्म, क्योंकि आज तक आपने जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम को आपने क्या ट्रीट किया था, एक्सपेंस. तो अब जब आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो, जब आप पॉलिसी का मैच्योर हो रहा है, तो जो भी पैसा आपको मिला है वो पूरे का पूरा इज इनकम ऑफ द फर्म एंड सच इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हो गया मेथड 1 का स्टोरी. अब मेथड 2 का स्टोरी क्या होता है, मेथड 2 में ऑलरेडी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अपीयर होता रहेगा बुक्स में. मेथड 2 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज अपीयरिंग इन योर बैलेंस शीट एट इट्स विच वैल्यू,
surrender value. मतलब if it is appearing on the asset side, if it is appearing on the asset side, it will be having which balance? डेबिट बैलेंस. तो कुछ ना कुछ डेबिट बैलेंस होगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो आपका डेबिट साइड पे आएगा. एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ आप ये एंट्री पास करोगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो यहां पे क्रेडिट साइड पे क्या पोस्ट करोगे आप? बाय बैंक अकाउंट. सच अमाउंट कैन बी आइदर और इट कैन बी फुल पॉलिसी अमाउंट. अब ये दोनों में हो सकता है देयर में बी सम डिफरेंस. मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने जो सरेंडर किया वो था फॉर एग्जांपल 1 लाख, लेकिन सॉरी मैंने जो एसेट साइड पे सरेंडर वैल्यू बताया वो 1 लाख है. अब पार्टनर का डेथ हो गया तो फुल पॉलिसी अमाउंट मिला. फुल पॉलिसी अमाउंट इज 5 लाख, तो बुक वैल्यू इज 1 लाख, फुल पॉलिसी अमाउंट इज 5 लाख, तो डिफरेंस बिटवीन दैट इज 4 लाख. दैट 4 लाख इज प्रॉफिट एंड दैट 4 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आर यू अंडरस्टैंडिंग द मेथड? चलो अभी एंट्रीज रिवाइज कराओ विदाउट सेइंग. कैन यू टेल मी सब पहले मेथड नंबर 1. कैन यू टेल मी मेथड नंबर 1 में, मेथड नंबर 1 में एक्चुअली स्पीकिंग में आपको 4 ही एंट्री याद रखना है. वो भी अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे इंडिपेंडेंट सम आया तो. अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट में आया तो इट इज वेरी सिंपल. लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में कैन यू टेल मी इट इज विच मेथड दैट द फर्म मस्ट बी फॉलोइंग. How did you come to know it is premium method? Because joint life policy is not appearing at its surrender value on the balance sheet asset side. क्योंकि अगर joint life policy का सरेंडर वैल्यू मेथड फॉलो होता रहेगा तो यहाँ पे एसेट साइड पे हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखेगा. सो प्रीमियम मेथड में 4 एंट्री याद रखना है. पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्ड, जिसमें 2 एंट्री आता है. सो प्रीमियम मेथड में व्हाट इज एंट्री नंबर 1 फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रीटिंग दिस प्रीमियम एज एन एक्सपेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम. ये एंट्री आप सपोज फॉर एग्जांपल 3 साल हमने लगातार प्रीमियम पे किया तो 3 साल ये एंट्री पास करो. अब सपोज 4th ईयर में रिटायरमेंट या डेथ होता है तो रिटायरमेंट पे आप पॉलिसी को क्या करोगे? सरेंडर. और डेथ पे आपको क्या मिलेगा? फुल पॉलिसी अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू. सो डजंट मैटर, एंट्री वही है. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग द अमाउंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो अभी तक आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ओपन नहीं किया तो अब आपने अकाउंट ओपन किया कॉल्ड एज बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आपको क्रेडिट बैलेंस दिखेगा. वो पूरे का पूरा आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ये हो गया प्रीमियम मेथड. अब आ जाते हैं सरेंडर वैल्यू मेथड. सरेंडर वैल्यू मेथड में भी 4 ही एंट्री पास करना है. व्हाट इज एंट्री नंबर 1 फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सेकेंड एंट्री फॉर एक्सेस प्रीमियम, वो आप फॉर एक्सेस आप इसको ट्रांसफर करोगे टू विच अकाउंट? पीएनएल. तो उसका एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. हाँ, ये मेथड में आपको एक पॉइंट याद रखना है. अगर इंडिपेंडेंट सम आया तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट अ बैलेंस शीट एसेट साइड पे अपीयर होगा एट इट्स विच वैल्यू? सरेंडर वैल्यू. एवरी ईयर के एंड में हम हमारे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे लेके आएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. वो डिफरेंस को आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल अकाउंट. तो ये 2 एंट्री हो गया. एंड वैसा ही 2 एंट्री आप नीचे पास करोगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. ओनली डिफरेंस इज इन मेथड नंबर 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी शोइंग सम ओपनिंग बैलेंस और वो जो डिफरेंस है वो आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स में. अब बताओ ये क्वेश्चन में क्या करना है? ये क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ये लोग ने क्या किया है? सरेंडर किया है. एंड हाउ मच इज द मनी दैट इज ऑब्टेन? 3,50,000. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर मनी दैट इज ऑब्टेन? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी. पहले वो एंट्री पास होगा एंड ये पूरे का पूरा 3,50,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल में. सो पहले राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट साइड. चलो, सो बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट.
3,50,000. Now go to partners capital. Partners capital में आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. This will be distributed in 2:3:2. 2:3:2 is 1 lakh, 1,50,000 and 1 lakh. ओके चलो नेक्स्ट स्टेप इज गुडविल. नेक्स्ट स्टेप हम लोग गुडविल का फॉलो करेंगे. बताओ गुडविल में एक ही एंट्री हम लोग ने पढ़ा है, वन मास्टर एंट्री इन एवरी प्रॉब्लम. इट इज व्हाट अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इज गुडविल का वैल्यूएशन ऑलरेडी डन एंड गिवन? यस. व्हाट इज द गुडविल वैल्यूएशन? 6,30,000. व्हाट इज द एंट्री? Gaining partner. Who is the gaining partner? Ram's account debit, Mohan's account debit to Hari's capital account. So पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे जाओ. डेबिट साइड पे लिखो टू हरीज कैपिटल अकाउंट. पिक अप योर कैलकुलेटर. कैलकुलेटर पे आप टाइप करो 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो राम का गेन कितना है? 11 lakh. 11 by 35. So 6,30,000 into 11 by 35. 1,98,000 किसके कॉलम में आएगा? राम के कॉलम में. चलो नेक्स्ट. अब हरी के कॉलम में डैश डालो. उसके बाद 6,30,000 इंटू 4 by 35 कितना आता है? 72,000 किसके कॉलम में आएगा? मोहन के कॉलम में. नेक्स्ट यू गो ऑन द क्रेडिट साइड. दिस इज लाइक कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड पे आएगा. क्रेडिट साइड पे लिखो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट. बाय राम्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल बी इन हरीज कॉलम 1,98,000. एंड नेक्स्ट आएगा बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट. Amount will be in Hari's column 72,000. Okay, now can you read 8 and 9? 8 and 9 में से पहले कौन सा करना चाहिए? Please don't expect that exam में they will give you the adjustment according to the order in which you can be solving. So can you tell me 8 and 9 से logically पहले क्या करना चाहिए? एडजस्टमेंट नंबर 8 इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट विल बी नाउ डन बिटवीन विच टू पार्टनर्स? राम एंड मोहन. एंड 9th वाला जो एडजस्टमेंट है दैट इज द हरी, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट हम सेटल कर रहे हैं. तो बोलो दोनों में से पहले कौन सा करना चाहिए? 9th वन. ओके, तो उसके लिए पहले आप कैलकुलेटर पे हरी का कैपिटल अकाउंट का टोटल करो. बैलेंसिंग फिगर बताओ. अरे हरी में 16 ले. ते क्या बोल रहे हो तुम लोग? फिर डेबिट साइड पे 30,000 है, 3 लाख नहीं है वो. तो एक दिन क्या शाम को लेक्चर हुआ, तुम लोग तो बौखला गए. नेक्स्ट दिन सुबह को उठने नहीं होता है. हम लोग रोज सुबह को, आज मेरा सुबह को 6 बजे मैं उठा हूँ, रात को 9 बजे तक मेरा लेक्चर है. फिर भी कल सुबह उठ के लेक्चर लूंगा. डेबिट साइड पे तुमको 30,000 की जगह पे 3 लाख दिख रहा है. कैन यू प्लीज डू सम बेटर मिस्टेक्स? कितना है? उसमें से 50% इज पेड ऑन व्हाट? रिटायरमेंट. यू नो व्हाट इज शॉकिंग? आई विल प्रूव इट. व्हाट इज शॉकिंग? ये सब हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है एंड यू डोंट रिकलेक्ट कि हमने क्लास में किया हुआ है. मैं प्रूव कर दूंगा अभी थोड़ी देर में. बोलो कितना परसेंट आता है? हाँ, तो 9,40,000 इज पेड. उसका एंट्री बोलो क्या आएगा? एक्चुअली सब जगह पे कैश और बैंक लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है वो लोग ने? कैश एंड बैंक. सो सब जगह पे कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा. तो बोलो एंट्री क्या आएगा हरी का अमाउंट पे करने के लिए? हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. तुम लोग को ना 12-12 घंटा इधर बैठना मांगते हैं सच्ची. It seems I am more tensed like your parents of your exam rather than you. But I am,
इट इज अनबिलीवेबल फॉर मी। पब्लिक इधर सुबह को आके आईपीएल डिस्कस कर रहा है, मतलब मेरे समझ के बाहर है ये। मतलब यू आर फॉलोइंग आईपीएल, यू आर वॉचिंग आईपीएल, किसी को तो फिगर सब डेटा याद है, इधर बैठ के आप एनालिसिस कर रहे हो। दिस अनबिलीवेबल। यू शुड बी टॉकिंग लॉ, इकोनॉमिक्स, क्यूए, अकाउंट्स का एंट्री डिस्कस करो। सी मुझे ये नहीं पता है, प्लीज आई वॉन्ट एवरीबडी टू पास फर्स्ट एंड। कैन यू डू यू अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग? नो यू डोंट। अगर आपको अंडरस्टैंड होता ना तो आप इधर आके आईपीएल डिस्कस नहीं करता। यू डोंट अंडरस्टैंड सीरियसनेस ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उधर रीफोकस बैच में पढ़ा रहा हूँ, उन लोग का हालत देखो, वो लोग फेल हो चुके हैं। यही सेम जब सम्स वापस से दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा ना, वो बहुत जन को उधर सुबह को डिस्कस कर रहे थे, उधर एंड्स हैं, उधर मत जाना। तो किसी ने बोला क्यों, तो बोलता है वो एंड्स ऊपर चढ़ता है ना तो कुछ तो होता है। वो सेम फीलिंग होगा जब आप सेम सम्स फिर से पूरा करना पड़ेगा। दिस इज अनबिलीवेबल। मालूम है, वो फीलिंग तुमको मालूम नहीं है। तुमको 16-16 घंटा पढ़ना चाहिए दिन का। आपको पता है मैं कैसे आईपीएल देखता हूं? मैं सुबह को जब मुलुंड स्टेशन से चढ़ा ना, 2 स्टेशन के बीच में मैंने क्रिक बस चालू किया। क्रिक बस पे सामने आया लखनऊ सुपर जायंट्स वन बाय दिस मेनी रन्स, ओके एग्जिट द ऐप, हो गया मेरा आईपीएल। इधर तो पब्लिक अंदर जा रहा है, उसने 5 विकेट लिया, उसने स्टार्टिंग में टॉस हुआ तब ये बोला, ये सब तुमको याद है, लेकिन हमने ये सब एग्जाम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमको याद नहीं है। मतलब सी, आई एम नॉट सेइंग डोंट फॉलो आईपीएल, फॉलो इट, बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम फ्री हो, तुम्हारे सर पे कोई एग्जाम लूमिंग नहीं है, मतलब विथ व्हाट सीरियसनेस? आई डोंट थिंक दोज प्लेयर्स आर प्लेइंग विथ सीरियसनेस। उन लोग के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 20-25 करोड़ लेके बैठे हैं वो लोग यार। तुम्हारे पास आज 2000 का नौकरी नहीं है। What are you doing? You are wasting your life. मतलब सीरियसली यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, बिलीव मी यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। ये कट अकाउंट, हरीश अकाउंट टोटल इज 18,90,000, उसमें से 50% इज पेड इन कैश। सो डेबिट साइड 2 कैश और बैंक अकाउंट 9,45,000। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50%? इट विल ट्रांसफर टू हरीश लोन। तो पहले लिखो 2 कैश और बैंक 9,45,000, 2 कैश और बैंक 9,45,000, go to cash or bank, buy Hari's capital account, and now go to back to partners capital, write down to Hari's loan, to Hari's loan, $9,45,000. What is the second effect of this? Balance sheet liability side में minimum 3 lines you have to leave, minimum. Okay, now what you do is पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टेम्पररीली क्लोज करो। इफ यू रिमेंबर हम लोग ने प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट यू टेम्परली क्लोज, चलो बताओ व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंसेस? 8,82,000, ओके। 10,08,000, these are temporary balances. ओके, कैन यू जस्ट टेल मी, इसको हम नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे, उसी अकाउंट में ब्रॉट डाउन करो उसको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राम के और मोहन के कॉलम में। ओके, कैन यू टेल मी क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ो।
चलो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो लोग ने बोला है शुड बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट. हाउ मच वाज द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट? 35 lakhs. This should be between which two partners? Ram and Mohan. In which ratio? तो बोलो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना आएगा? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 21 lakhs एंड 14 lakhs. डिफरेंस किस में सेटल करना है वो दिया नहीं है, तो डिफरेंस किस में सेटल करोगे? कैश और बैंक. सो पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाओ. बोलो कितना है? पहले तो आप क्लोजिंग बैलेंस लिखो, डेबिट साइड पे जाके 2 या 3 लाइन छोड़ के लिखो. टू बैलेंस कैरीड डाउन. राम के कॉलम में 21 lakhs. चलो डिफरेंस मेरे को बताओ, दोनों में विच साइड इज मोर, या एक का डेबिट एक का क्रेडिट, ऐसा कुछ अलग अलग है या दोनों में सेम? दोनों का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, मतलब डिफरेंस दे विल ब्रिंग इन, नो? 48 lakhs 95,000. ठीक है. क्वेश्चन 1 इज योर होमवर्क. इसको आप सॉल्व करो. ये जो अभी अभी हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये सेम क्वेश्चन था, हम लोग ने पास्ट में किया हुआ है. आपके टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो. ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, राम, राहुल और रोहित वाला. सेम क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स फिगर्स अलग हैं. अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम 9 एडजस्टमेंट्स हम लोग ने जो अभी ये क्वेश्चन में किया है. अभी आप लिख लो आपके वॉल्यूम 3 में कौन से सम्स रिटायरमेंट के फाउंडेशन के सम्स हैं. आई थिंक व्हेन आई वाज टीचिंग तभी भी मैंने आपको सिखाया. बट नाउ यू कैन राइट इट. Question 4. Let us read the question. The partnership deed of a firm consisting of 3 partners PQR, profit sharing ratio being 2:1:1, whose fixed capitals are 30,000, 12,000 and 8,000 respectively, provides as follows. तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो इसके नीचे सब दिया हुआ है, that is written inside the partnership deed. Partners will be allowed interest at the rate of 8% per annum on their fixed capitals, but no interest will be allowed on undrawn profits or will be charged on drawings. That is first point in the partnership deed. Second clause partnership deed का आपको दिया हुआ है, upon the death of the partner, goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for 3 years up to 31st December preceding the death of the partner. That is second clause. Third clause में लिखा है, an insurance policy of 25,000 each was taken in individual names. So it is an insurance policy which was taken in individual names of each partner. The premium was charged against the profits of the firm. What does this mean? Premium was charged against profits of the firm. मतलब they were following which method? First, that is premium method. मतलब premium was treated as an expense. Surrender value of the policy was 20% of the sum assured. That was third clause. Fourth clause, upon the death of the partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capitals calculated up to 31st December following his death.
And fifth one, the share of the partnership policy and goodwill will be credited to the deceased partner as on 31st December following his death. Partnership books to be closed on 31st December. P died on 30th September 2020. Death में date of death is very important. So it is death का date 30th September 2020. The amount standing to the credit of his current account on 31st December 2019 was 5,000, and from that date to the date of death he had withdrawn 30,000 from the business. An unrecorded liability of 6,000 was discovered on 30th September 2020, and it was decided to record it and pay off immediately. The trading results of the firm before charging interest on capital has been as follows. So 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. इनफैक्ट फर्स्ट 1 साल में 2019 में there is a loss. You are required to prepare an account showing the amount due to P's legal heir on 31st December 2020. Impact for unrecorded liability not to be given in the earlier years. ऐसा आपको एक नोट दिया हुआ है. Okay, so first of all you can see you are required to prepare an account showing only amount due to P's legal heir. उतना ही हमको करना है. तो हम लोग ने 2 अकाउंट ओपन करना है. Can you tell me which 2 accounts related to P you will open in this question? P's current account and P's capital account. So write down P's current account. उसमें मुझे डेट कॉलम भी चाहिए. सो प्रॉपर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ. पीस करंट अकाउंट हमको सिर्फ 4 लाइन का चाहिए. पीस करंट अकाउंट विल बी फॉर 4 लाइन्स. एंड उसके नीचे बनेगा पीस कैपिटल अकाउंट. पीस करंट अकाउंट मैक्सिमम 4 लाइन्स. उसके नीचे पीस कैपिटल अकाउंट. पीस कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो मैक्सिमम फॉर 10 लाइन्स. मैक्सिमम 10 लाइन्स, क्योंकि उसके नीचे हम लोग को वर्किंग्स बताना है. चलो, डिड यू प्रिपेयर द फॉर्मेट? पहले जाके दोनों अकाउंट के डेट कॉलम में लिख दो 2022. दोनों अकाउंट के डेट कॉलम में जाके लिख दो 2022, बिकॉज वी आर इन द ईयर 2022. दैट इज द ईयर इन विच द डेथ ऑफ द पार्टनर हैज टेकन प्लेस. 20 है तो 20 लिखो. 2020 इज द ईयर इन विच डेथ हैज टेकन प्लेस. Okay, can you tell me what is the date of death? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है what is the date of death? September 30. ठीक है. So 30th September is the date on which death of partner has taken place. That is exactly, और इनफैक्ट 9 months के बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2020 दिया है. We will follow calendar year of course. So 2020 अगर वो लोग ने बोला है, so it is calendar year that they are talking about. So it is how many months after the last balance sheet? या last year कौन सा year था? 2019. So death has taken place after how many months? 9 months. 9 months के बाद, that is 30th September 2020 को death हुआ है. Why this date is important? कुछ तो reason होगा ना why this date is important? क्योंकि हम लोग सब कुछ उसको proportionately 9 months का देंगे. That is in normal death का प्रॉब्लम, but not in this question. ऐसा हम लोग ने एक ही क्वेश्चन किया हुआ है हमारे नॉर्मल रेगुलर क्लास में, जहां पे हम लोग ने सेटलमेंट एंड ऑफ द ईयर में किया हुआ है. नॉर्मल डेथ के क्वेश्चन में डिसीज्ड पार्टनर का जो भी सेटलमेंट होता है वो डेट ऑफ डेथ पे होता है. बट हियर क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है, रीड द लास्ट लाइन. इनफैक्ट 2 बार 3 बार क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है. फर्स्ट हिंट दे हैव गिवन इन
पॉइंट नंबर 6 रादर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड with his share of profits and interest on capital which are calculated up to 31st December following his death. 31st December following his death मतलब if his death has taken place on 30th September 2020, which is the 31st December which is following his death. 31st December 2020 आपको लास्ट लाइन में भी दिया हुआ है. लास्ट लाइन में इनफैक्ट पॉइंट नंबर 5 में भी आपको हिंट दिया हुआ है कि जो भी उसका शेयर ऑफ पॉलिसी है, गुडविल है, विल बी क्रेडिटेड एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ. लास्ट लाइन में भी आपको हिंट दिया हुआ है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीस लीगल एयर एज ऑन 31st December 2020. ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, एक क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं. नॉर्मल डेथ के क्वेश्चंस में पार्टनर का सेटलमेंट, डिसीज पार्टनर का सेटलमेंट कौन से डेट को होता है? ऑन द डेट ऑफ डेथ. सो एवरी टाइम वी विल डू सम एडजस्टमेंट. हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे. सो एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन में सेटलमेंट कौन से डेट को हो रहा है? 31st December. So we have to keep this in mind. Okay, anyways, आप देखो अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन 31st December 2019 was 5,000. So I want to start with this, that उसके करंट अकाउंट में there was which balance? Credit balance. As on which date? 31st December 2019 was only rupees how much? 5,000. So go to current account. पीस करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा Jan 1 because we have started with 2020. Next line Jan 1 credit side buy balance brought down 5,000. Okay, can somebody check and tell me कि P के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था? पीस कैपिटल अकाउंट, व्हाट वाज द बैलेंस? 30,000. ओके, पीस कैपिटल अकाउंट में विच बैलेंस है ये? 30,000. क्यों क्रेडिट? आपको कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो दैट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही है? बिकॉज दे आर फॉलोइंग विच कैपिटल मेथड? फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट. सो अगेन गो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड 2020 Jan 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. सॉरी कितना है? 30,000. ओके, 30,000. पी का डेथ हुआ है, सो आप पी पे फोकस करो, क्यू एंड आर का कुछ मतलब नहीं है. चलो इधर तक तो हम लोग का नॉर्मल सम था. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. कैन यू चेक? आपको कहीं पे तो दिया है फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैज विथड्रॉन 30,000 फ्रॉम हिज बिजनेस. सो कैन यू टेल मी दिस ड्रॉइंग्स इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. ठीक है. सो ड्रॉइंग्स विल कम इन विच अकाउंट? विच साइड? डेबिट साइड पे लिखो. डोंट राइट September 30, राइट डाउन अप टू 30 September या अप टू September 30. अप टू September 30. हाउ मच इज ड्रॉइंग्स का अमाउंट? 30,000. चलो आई एम गोइंग स्टेप वाइज. ऐसा आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा रिजर्व कुछ दिख रहा है क्या जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नो. कैन यू टेल मी स्टेप नंबर 1? एक्चुअली हम लोग को रेशियोज कैलकुलेट करना था, बट ऐसे सिचुएशन में रेशियो कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. कैन यू टेल मी इज देयर एनी ओल्ड रेशियो गिवन? यस. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? तो उसमें से P का शेयर कितना है? 2/4. सो 2/4 P. अगर P का डेथ हो रहा है तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है Q एंड R विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन व्हाट रेशियो? 1:1. सो ये हो गया उनका न्यू रेशियो एज वेल एज ये उनका गेन रेशियो हो गया 1:1. तो इसके कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज करने का इसके लिए हमको जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 2 हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिखा. इनफैक्ट हम लोग ने ड्रॉइंग्स भी रिकॉर्ड कर लिया है. नाउ कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? स्टेप वाइज जाओ प्लीज, स्टेप वाइज जाओ. अब स्टेप वाइज जाओगे तो आपको याद रहेगा कि किसका चीज क्या करना है. अभी अभी रिवैल्यूएशन करके हम लोग ने स्टेप किया रिटायरमेंट में. रिटायरमेंट और डेथ में कोई अलग स्टेप्स नहीं है, स्टेप सेम ही है. थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए?
revaluation. So is there any step related to revaluation? Yes, which is that unrecorded liability was paid off. How much was unrecorded liability? 6,000. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर आप पे ऑफ करोगे तो कैन यू टेल मी रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा? मतलब अदर लैंग्वेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया नहीं है, अगर आप बनाओगे तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये एक ही ट्रांजैक्शन आने वाला है, तो 6,000 का क्या दिखेगा? लॉस दिखेगा. ये लॉस आप तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. तीनों पार्टनर में नहीं, मुझे सिर्फ पी में इंटरेस्ट है, तो कैन यू टेल मी पी का शेयर कितना आएगा ये लॉस में? 2,000. दैट इज 2/4. 2,000 यस और नो? 2,000 है कि 3,000 है? 3,000. 2/4 हाफ हो जाएगा, दैट इज 3,000. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये कौन से अकाउंट में लिखने का? रिवैल्यूएशन लॉस पहले तो कौन से अकाउंट में लिखने का, कौन से साइड पे लिखने का वो क्लियर है. इट इज लॉस है तो कौन से साइड पे लिखोगे आप? डेबिट साइड पे. लेकिन कौन से अकाउंट में लिखोगे? करंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में? तो मैं ये बता देता हूं, हम लोग ने डिस्कस किया था कि पार्टनर का डेथ हो चुका है. अब पार्टनर का डेथ हो चुका है ना, तो एक्चुअली अभी उसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ने फिक्स कैपिटल या अलग से करंट अकाउंट ने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का कोई पर्पस नहीं है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट सेपरेटली व्हेन द पार्टनर इज अलाइव? करंट अकाउंट को सेपरेट मेंटेन करने का लॉजिक ये था कि मुझे फाइंड आउट करना है कि वो ड्रॉइंग्स कितना ओवर ड्रॉ कर रहा है, तो उसके वजह से मैं करंट अकाउंट का बैलेंस अलग रखता हूं. बट अब उसका जब डेथ हो चुका है तो आई विल मर्ज द करंट अकाउंट विथ कैपिटल. तो सबसे पहले आप क्या करो, करंट अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. यू कैन ट्रांसफर दिस ऑन 30th September ओनली, दैट इज ऑन द डेट ऑफ डेथ. देखो इंस्टीट्यूट में ये कॉन्सेप्ट पे ना 2 क्वेश्चन है, दोनों में वो लोग ने ऐसा किया है. खाली वो पीटर पॉल वाले सम में हम लोग ने रिवैल्यूएशन को कंपल्सरली कैपिटल में लिखा था, क्योंकि वो पीटर पॉल वाले सम में दिया था कि रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स, रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में करना है. तो इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंटली ये फॉलो कर रहा है, तो प्लीज तू उसको चेंज करने का कोशिश मत कर. सो इसी डेट पे आप करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दो बैलेंस. आई थिंक करंट अकाउंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि उसका ड्रॉइंग्स ज्यादा है. तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय पीस कैपिटल अकाउंट 25,000. दिस विल कम टू पीस कैपिटल अकाउंट ऑन विच साइड? डेबिट साइड पे लिखो आप. पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो. टू पीस करंट अकाउंट September 30, 2 पीस करंट अकाउंट 25,000. अब उसका करंट अकाउंट ने कैपिटल अकाउंट करके कुछ अलग ही नहीं है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो हम कौन से अकाउंट में, कौन से साइड पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो राइट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे 2. You can write revaluation, or you can also write to profit and loss adjustment account. To profit and loss adjustment account. Next line bracket में calculation बताओ. 6,000 into 2/4. 6,000 into 2/4. Okay, at present I want to do only one adjustment. उसके बाद हम लोग ये सम संडे को कंटिन्यू करेंगे. मुझे एक ही एडजस्टमेंट एट द और फॉर द टाइम बिंग करवाना है, इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्लीज चेक एंड टेल मी, इज द पार्टनर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस. कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हु इज द डिसीज्ड पार्टनर? पी. पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितने मंथ्स के लिए मिलेगा? 9 months इज रॉन्ग, 12 months. क्लियरली लिखा है पॉइंट नंबर 4 में. ही विल बी क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अप टू 31st December. नॉर्मल प्रॉब्लम में 9 months इज करेक्ट. नॉर्मल प्रॉब्लम में अगर बोला रहेगा तो हम लोग 9 months का देंगे. अगर ये कैन यू टेल मी इसकी जगह पे वो लोग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? Upon the death of the partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital, etc. up to the date of death. ऐसा लिखेंगे वो लोग, तो 9 months का दोगे. बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इट विल बी क्रेडिटेड अप टू 31st December. सो आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे?
12 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो पहले 12 मंथ्स का इंटरेस्ट किस पे दोगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज 8%, ऑन विच अमाउंट 30,000, तो बोलो कितना आता है 2,400। बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, राइट ऑन क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, yes December 31 buy interest on capital 2,400। okay so I am stopping this question here क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बाद में तीनों कैलकुलेशन में नेक्स्ट टाइम करूंगा, एक गुडविल का, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन एक मिनट, तुम लोग का वॉल्यूम 3 में मैं जो बोल रहा हूँ ना वो क्वेश्चन रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू कम। आज इतना सब भाषण देने के बाद आई थिंक इतना सिंसियरिटी तुम में रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करके आओगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 को थरोली रिवाइज करके आओगे एंड क्वेश्चन 57 वो पीटर पॉल वाला सम है। प्लीज रिवाइज दीज 2 क्वेश्चंस बिकॉज वो 2 क्वेश्चंस है वो सिमिलर है। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क लिखो, वो आपको करना है, इट इज ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन। जनवरी 25 का जो अटेम्प्ट था ना, जनवरी, तुमको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करने को आता है? हाँ, तो जनवरी 25 का अटेम्प्ट में डेथ ऑफ द पार्टनर का एक क्वेश्चन था, वो ढूंढ लेना भी कौन सा क्वेश्चन नंबर था। डू दैट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है ना, दैट इज ऐसा क्वेश्चन नहीं है, उसमें सब बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, वो सब बनाना है। तो प्रॉपर डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन है वो। सी आई एम डेथ ऑफ द पार्टनर, मैं जब जनवरी बैच में सीखा रहा था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डेथ का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसके पहले वाले क्वेश्चन में रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया था एंड बाद में पहले एडमिशन आया था। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऐसा बाय रिपीटेडली पूछता है। बट ऐसा मत सोचना कि अभी डेथ का क्वेश्चन आ गया है तो अब मई में वापस डेथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा इंस्टीट्यूट इज नोइंग फॉर ब्रेकिंग इट्स ट्रेंड ना, मतलब बहुत सारे, जैसा आप नॉर्मली सोचते हो ना, तो इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर भी वैसे ही सोचता है। बच्चे ने क्या सोचा रहेगा कि लास्ट टाइम हमने डेथ पूछा तो ये टाइम नहीं पूछेगा, तो ये लोग डेथ ऑप्शन में छोड़ के आएंगे, नहीं सडनली तुम्हारे सामने 15 मार्क का डेथ का क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम लोग वहां पे ठंडे पड़ जाएंगे। तो ऐसा मत करो, डोंट लीव एनीथिंग एज ऑप्शन। ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन संडे।